temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we were studying about the topic examining ourselves, testing ourselves. पिछले हफ्ते हम इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अपने आप को जांचते चले जाना है। It is important for us to examine our faith. और ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने विश्वास को जांचते चले जाएं। Many people go in the wrong direction and they don't even know that they are in the wrong direction. बहुत से लोग गलत दिशा में चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो लोग तो गलत दिशा में हैं, वो गलत दिशा में जा रहे हैं। And Paul said in 2 Corinthians 13 and verse 5, he said, test yourself to see if you are in the faith. Examine yourself. प्रेरित पौलुस यहाँ पर 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 में कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, वो ये कहता है। Many people, if they don't test themselves, they'll be going on a wrong track and they don't even realize it and they end up in a very terrible state. बहुत से लोग जब अपने आप को जांचते नहीं हैं तो वो गलत मार्ग पर चले जाते हैं और वो इस बात को समझते भी नहीं हैं और वो अपने आप को मानो पूरी तरह से खत्म कर And देते we saw हैं। that it's important for you to test yourself to know the word of God. और देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को जांचते चले जाएं ताकि आप परमेश्वर के वचन को जान सकें। For the word of God contains the mind of God, His will and His plan for your life is mentioned in the word of God. परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की योजनाएं हैं, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा और वो क्या चाहता है, ये सब कुछ वचन में बताया गया है। And if you don't know the word of God, you will not be able to test yourself. और अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं तो आप खुद को नहीं जांच पाएंगे। The first and foremost important thing is to know the word of God well. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे पहली बात यह है कि आप वचन को अच्छे से जान लें, Not just a superficial understanding. केवल बाहरी ऊपरी समझ न रखें, But let your roots go deep into the word of God. लेकिन आपकी जो जड़ें हैं वो परमेश्वर के वचन में बहुत ही गहराई में चली जाएं। Bible says, blessed is the man who meditates and studies the word of God. He'll be like a tree by the rivers of water. परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को जानता है और इस पर अध्ययन करता है, वो तो नदी के किनारे लगाए गए पेड़ के जैसे होगा। He is blessed because day and night his delight is in the law of the Lord. और वो इसीलिए आशीषित है, धन्य है, क्योंकि वो दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था में प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है। And always his leaves will be green. और उसके पत्ते तो हमेशा हरे भरे रहेंगे। In the right season he will bear the fruit. और बिल्कुल सही ऋतु में वो अपने फल लेकर आएगा। But it's important that you need to fill your mind and your heart with the word of God. लेकिन ये बहुत ही जरूरी है कि आप अपने मन को, अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भरते चले जाएं। Then you can make sure that you can test whether you are in the faith or not. तब आप निश्चित कर सकते हैं, खुद को परख सकते हैं कि क्या आप विश्वास में हैं या नहीं हैं। When the word of God is in your mind and your heart, whenever anything comes which is not right, which is not in line with the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं और आपके दिल में कुछ बातें आती है जो कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाती है, you will immediately be able to pick up and cut it out of your life. तो आप तुरंत उन सारी बातों को जान पाएंगे और अपने जीवन से उसे निकाल देंगे। Not studying the word for yourself and only listening to somebody preaching all the time and not studying for yourself is not good. परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करना और केवल दूसरों के प्रचार को सुनना, ये बात तो अच्छी नहीं होती है। See, I am teaching the Bible on the television. मैं टेलीविजन पर आपको बाइबल में से संदेश दे रहा हूँ। But if you only listen to me and you don't study the Bible for yourself, then it's not good for you. लेकिन अगर आप केवल मेरी बातें सुनेंगे और बाइबल का अध्ययन नहीं करेंगे तो ये बात आपके लिए अच्छी नहीं है। We studied last week about some people in a place called Berea. हमने बिरिया नाम के जगह के कुछ लोगों के बारे में पिछले हफ्ते अध्ययन किया था। Paul the apostle came to them and taught the word of God. प्रेरित पौलुस उनके पास में आता है और वो खुद उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाता है। Those people went back to their homes. और वो लोग अपने अपने घर वापस जाते हैं। They opened the Bibles और बाइबल खोलते हैं and studied eagerly. Is it true what he is teaching? Is it true? और वो ध्यान से अध्ययन करते हैं कि उसने जो कुछ भी सिखाया है क्या वो बात बिल्कुल सच है। They didn't say, oh, he's a man of God, let me swallow whatever he says. उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तो परमेश्वर का दास है, जो कुछ भी उसने कहा उसे ले लेता हूँ। Many people, that's what they do. बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। Their whole
theology is based on the television or on some internet on the preacher. That's it. और उनकी पूरी थियोलॉजी केवल टेलीविजन के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर या फिर किसी प्रचारक के ऊपर आधारित होती है और वो अपने जीवन में बस केवल इतना ही करते हैं। It's good you hear the preacher is good, आप प्रचारक को सुनते हैं, ये बात तो अच्छी है, but take the time to study the Bible. Is it written? Is it going according to what the Bible says or not? लेकिन आप समय निकालिए, बाइबल का अध्ययन कीजिए और देखिए कि क्या वो सारी बातें बाइबल के अनुसार है या नहीं। इस बात को खुद जांच लीजिए। If I teach something, अगर मैं आपको कुछ सिखाता हूँ you go and study the Bible. और जाकर आप बाइबल का अध्ययन करते हैं, Don't just swallow everything that you hear and you don't do your homework. You have to do your homework. आप ऐसा मत कीजिए कि बस आप सुनते रहें और सारी बातों को ऐसे निगल लीजिए और होमवर्क मत कीजिए। ऐसी बात नहीं होनी I चाहिए। spend many times reading the Bible. मैं ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बिताता हूँ And I've covered the Bible from cover to cover many times. और मैंने शुरू से लेकर अंत तक बाइबल को कई बार पढ़ा है I don't count the number of times. और मैंने कितनी बार पढ़ा इसकी गिनती भी नहीं की है, Because if I keep counting, I'll be getting proud. Oh, I read so many times, I'll get proud. क्योंकि अगर मैं उसकी गिनती करूं तो मैं घमंड से भर जाऊंगा कि हाँ मैंने बाइबल इतनी बार पढ़ी है। So, but I read it many times, sir. लेकिन मैंने इसे कई बार पढ़ा है And that has been in my heart and mind. The word of God is soaked in my heart and mind. और ये तो मेरे दिल में, मेरे मन में बसा हुआ है। परमेश्वर का वचन मेरे अंदर पूरी तरह से जा चुका है So I know what God wants and what God doesn't want. और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता है। And I'll be able to examine my life in the light of the word of God. और मैं परमेश्वर के वचन की ज्योति में अपने जीवन को निश्चय ही जांच सकता हूँ। You should be the same. आपको भी ऐसे ही करना है। Don't just depend on a preacher. आप बस प्रचारक पर आधारित न रहें। You study the word of God for yourself. आप खुद अपने लिए परमेश्वर के वचन का अध्ययन It कीजिए। is our responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है। We have to study the Bible. हमें बाइबल का अध्ययन करना है। Because if you don't know the Bible and you hear some preacher teaching something and you don't know what the Bible says, you can be deceived. अगर आप बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं और आप किसी प्रचारक के संदेश को सुनते हैं और उसे ऐसे ही अपना लेते हैं तो निश्चय ही आप धोखा खा रहे हैं। Because the Bible says in these last days there are many doctrines of devils are coming out. क्योंकि बाइबल ये कहती है कि इन अंतिम दिनों में शैतान के बहुत से सिद्धांत बताए जाएंगे And many are departing from the faith because they do not have the word of God in their heart. और बहुत से लोग विश्वास से भटक जाएंगे क्योंकि उनके दिल में परमेश्वर का वचन नहीं है। Now the second thing we'll study today. अब दूसरी बात जिसका आज हम अध्ययन करेंगे, Last week we studied about examining whether you are in the faith or not. पिछले हफ्ते हमने इस बात का अध्ययन किया कि हम इस बात को परखेंगे कि क्या आप विश्वास में हैं या नहीं हैं। But now we examine your works. लेकिन अब हम आपके कामों को परखेंगे। The second thing we test yourself is examine your works. दूसरे तरह से आप अपने आप को जांच सकते हैं और वो है कि अपने कामों को आप परखते जाएं। Let us read a verse from Galatians chapter 6 and from 3 to 5. आइए वचन पढ़ते हैं। गलातियों अध्याय 6 वचन 3 से लेकर वचन 5 तक हम पढ़ते हैं। For if anyone thinks that he himself to be something when he is nothing, he deceives himself. But let each examine his own work. Then he will have rejoicing in himself alone and not in another. For each one shall bear his own load. क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। See, we as men and women of God, देखिए, हम परमेश्वर के दास और दासी होने के नाते, I have to say this for myself also. और देखिए मुझे ये बात खुद के बारे में भी कहनी होगी, Because I am also preaching the word of God. क्योंकि मैं भी वचन का प्रचार कर रहा हूँ। I have to examine my motives and the work that I am doing. I have to examine it. मुझे अपने उद्देश्यों को और मैं जो काम कर रहा हूँ उसे परखना होगा। निश्चय मुझे जानना होगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। What I do, is it pleasing to God? जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ क्या ये परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है, Am I doing it for my own glory? या फिर मैं अपनी खुद की महिमा के लिए इसे कर रहा हूँ। Am I doing it to get a public opinion of myself? क्या मैं इसे इसलिए कर रहा हूँ कि लोग मेरे बारे में एक अलग दृष्टिकोण रखें? Am I getting proud of myself? क्या मैं अपने बारे में घमंड कर रहा हूँ? See, it says, let examine your works, it says. ये कहता है कि वो अपने ही कामों को परख ले, वो अपने कामों को जांच ले। There are many people who have done so many good things for God, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत से भले काम किए हैं, preached so many places, उन्होंने बहुत सी जगह पर प्रचार किया है, done many good works and given to the poor and blessed so many things. और उन्होंने बहुत से भले काम किए, अच्छे काम किए हैं, गरीबों को बहुत कुछ दिया है, बहुत अच्छे काम किए हैं। But if the motive is wrong, लेकिन अगर उनका ये सब करने के पीछे उद्देश्य गलत है, if it is for your own glory, अगर ये आपकी खुद की महिमा के लिए है,
it may not be acceptable in the sight of God. तो ये शायद परमेश्वर की दृष्टि में स्वीकार करने वाला नहीं है। The Bible says बाइबल कहती है in 2 Corinthians chapter 5 and verse 10, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 10 में बाइबल इस तरह से कहती है, it says, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether it is good or bad." क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो उसका बदला पाए, यानी उसके बारे में वो प्रतिफल प्राप्त करें। There is a judgment seat for the Christians and the believers. विश्वासी लोगों के लिए, मसीह विश्वासी लोगों के लिए एक न्याय का आसन है There's another judgment seat for the unbelievers. और अविश्वासियों के लिए एक और अलग न्याय का आसन है। This judgment seat is called the judgment seat of Christ. और ये जो न्यायासन है ये तो मसीह के न्यायासन के बारे में कहता है। If I, as a preacher, और मैं जब एक प्रचारक के रूप में if I do the work I'm doing for my glory, अगर मैं अपनी महिमा के लिए ये सारे काम करते चले जाता हूँ, if I do this to become popular, और अगर मैं इसे केवल विख्यात होने के लिए करता हूँ, if I do this to get money, और अगर मैं केवल इसे पैसा पाने के लिए करता हूँ, with the wrong motive, if I do my work, अगर मैं अपनी ये सारे काम केवल गलत उद्देश्य के साथ में ही करता हूँ, the day will come when I have to stand before the judgment seat of Christ. तो फिर एक ऐसा दिन आएगा जब मुझे परमेश्वर के मसीह यीशु के न्यायासन के सामने खड़े रहना है, And my work will be tested, और उस समय मेरे कामों को परखा जाएगा, be tested by fire. और आग के द्वारा इसे परखा जाएगा। Whether my work will stand or not, it depends how I've done this work. मेरे ये काम वहां पर बने रहेंगे या नहीं, ये तो इस बात पर आधारित होते हैं कि ये काम मैंने किस उद्देश्य के साथ में किए थे। Many times, कई बार many people, बहुत से लोग they have done the work of God, but with the wrong intention. उन्होंने परमेश्वर का काम तो किया है लेकिन गलत उद्देश्य के साथ किया है। Many people have come to know Jesus through their work. उनके कामों के द्वारा बहुत से लोगों ने यीशु को जाना भी है, They all will go to heaven. वो सब स्वर्ग में जाएंगे। But this person who did the work, लेकिन ये व्यक्ति जिसने ये सारे काम किए the हैं, person who preached, जिसने प्रचार किया है, if he has done it with the wrong motive, लेकिन अगर उसने इसे गलत उद्देश्य के साथ में किया है, then those people go to heaven, but he himself may miss heaven. तो बाकी वो सारे लोग स्वर्ग में चले जाएंगे लेकिन ये व्यक्ति शायद स्वर्ग को चूक जाए। Paul the apostle said, प्रेरित पौलुस ने इस तरह से कहा है, 1 Corinthians chapter 9 and verse 27. पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 27 कहता है, I keep my body under subjection, Paul says, so that after bringing many, that I will not be cast out. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। That's how we should be. हमें ऐसा ही होना है। We must not think that, oh, I'm doing the work of God, I will have entrance to heaven, God will welcome me with open arms. हमें ये नहीं कहना है कि देखो मैं तो परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, परमेश्वर बड़ी खुली बाहों के साथ में स्वर्ग में मेरा स्वागत करेगा। God will welcome you with open arms when you do it with the right motive. जब आप सही उद्देश्य के साथ में इसे करते हैं तो बड़ी खुली बाहों से परमेश्वर स्वर्ग में आपका स्वागत तो जरूर करेगा। But if the glory has come to me and not to God, लेकिन अगर ये महिमा मुझे मिली है और परमेश्वर को नहीं मिली है, then when I get to the judgment seat of Christ, I will be rejected. तो फिर जब मैं मसीह यीशु के न्यायासन के सामने पहुंचूंगा तो शायद वहां पर मेरा इनकार किया जाएगा। 1 Corinthians chapter 3 verse 11 to 15. पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 11 से 15 तक इस तरह से कहता है, आइए हम इसे देखते हैं। It says, for verse 11 says, no man can lay any foundation other than the one which is laid, which is Christ Jesus. क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता है। Verse 12 says, if any man builds on the foundation gold, silver, precious stones, or wood, hay and stubble. वचन 12, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, इस तरह से वचन 12 हमें बताता है। Verse 13 says, each man's work will be evident, for the day will show it, because it will be revealed by fire, and the fire itself will test the quality of each man's work. वचन 13, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। And verse 14 says, if any man's work which he has built on it remains, he will receive a reward. वचन 14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, इस तरह से कहता है। And verse 15 says, if any man's work is burnt up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet as by fire. वचन 15, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। इस तरीके से यहाँ पर ये कहता है। It will be a very sad thing on that day. और उस दिन तो ये बहुत ही दुख की बात होगी।
If all the work you have done for the kingdom of God, आपने परमेश्वर के राज्य के लिए जो भी काम किया है, if it all gets burnt up, अगर वो सब कुछ जल जाए, if it is just wood, hay and stubble, अगर ये केवल लकड़ी या घास फूस ऐसे ही रहे, it will get burnt in the fire. तो ये आग में जल जाएगा। If it is gold, silver and precious stones, लेकिन अगर ये सोना, चांदी या फिर अनमोल पत्थर हो, it will survive the fire. तो फिर ये आग में बचकर रहेगा। The fire means it will test, just like how you test metals for purity. That fire will test your purity. और आग जो है ये तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि हम किसी पदार्थ या धातु को उसकी शुद्धता के लिए परखते हैं। ये आग जो है वो आपकी शुद्धता के लिए आपको परखती जाएगी। Jesus said, यीशु ने कहा, on that day many will say to me, और उस दिन बहुत से लोग मुझसे ये कहेंगे, Lord, Lord, have we not done great things in your name? प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम में बड़े और महान सामर्थी काम नहीं किए? Have we not done miracles? क्या हमने तेरे नाम में चमत्कार नहीं किए हैं? Have we not preached क्या हमने प्रचार नहीं किया है in your name? तेरे नाम से? Jesus will say, I don't know you. और यीशु उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Depart from me, you workers of iniquity. हे कुकर्मियों, तुम मेरे पास से दूर हो जाओ, यीशु उनसे कहेगा। That will be a very sad day. और ये बड़े दुख का दिन होगा When we just do it for ourselves and our own glory, our own money, our own fame. जब हम इसे अपने लिए करते, अपने पैसे के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी शोहरत के लिए करते हैं। That day, all the work that we have done will be burnt up. तो उस दिन हमने जो भी काम की है वो पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाएंगे। I want to be very careful मैं बहुत सावधान रहना चाहता हूँ that I don't take pride to myself. ताकि मैं अपने लिए घमंड न लूं, I don't think of myself bigger than what I am. ताकि मैं जो हूँ उससे बढ़कर अपने बारे में न सोचूं, That I don't do anything to get money from people. ताकि लोगों से पैसा पाने के लिए मैं कुछ भी गलत काम न करूं। Rather, I'll put my own money. इसके बजाय तो मैं खुद अपना पैसा डालूंगा। I will work and I'll put my money. मैं काम करूंगा और मैं अपना पैसा लगाऊंगा, Rather than taking from people. दूसरे लोगों से पैसा लेने के बजाय। The Bible says the love of money is the root of all evil. क्योंकि बाइबल ये कहती है कि पैसों का जो प्रेम है यही तो सारी बुराई और सारे गलत कामों के लिए जड़ होती है। So many have fallen into this pit, this trap, and then they have lost the faith. बहुत से लोग जो है इस गड्ढे में गिर गए हैं, इस जाल में फंस गए हैं और अपने विश्वास को खो बैठे They're हैं। doing the work of God, वो प्रभु का काम तो कर but रहे with the हैं, wrong motive. लेकिन गलत उद्देश्य के साथ में। And when the day comes for testing, their works may be burnt up. और जब परखे जाने का दिन आएगा तब शायद उनके सारे काम जल जाएंगे। I want to be careful. मैं सावधान रहना चाहता And I हूँ tell all those who are watching me, और मुझे देखने वाले सभी लोगों से मैं कहता if हूँ, you're a preacher or a pastor or a teacher, अगर आप प्रचारक हैं, पास्टर हैं या फिर आप वचन की शिक्षा देने वाले व्यक्ति हैं, if you're moving in the gifts of the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा के वरदान में होकर काम कर रहे हैं, if you're praying and people are getting healed, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं और लोग चंगे हो रहे हैं, if you're seeing miracles in your ministry, और अगर आप अपनी सेवकाई में चमत्कारों को होते हुए देख रहे हैं, don't think of yourself as a great man of God. तो आप परमेश्वर के एक महान दास के रूप में खुद को न देखें। Think of yourself as an unprofitable, useless servant of God, servant of a great God, not a great servant of God, but a servant of a great God. आप अपने आप को इस तरह से देखें कि आप एक सामान्य से दास हैं, परमेश्वर के महान दास नहीं हैं, लेकिन महान परमेश्वर के एक सामान्य दास हैं। Jesus said in Luke chapter 17, लूका अध्याय 17 में यीशु ने इस तरह से कहा है, he told his disciples उसने अपने चेलों से ये कहा, from verse 7 to verse 10, वचन 7 से लेकर वचन 10 तक यीशु ने अपने चेलों से I कहा। will give a gist of it, a short, a summary. चलिए मैं आपको इसका सारांश बताता हूँ। He said, if anyone has a servant who goes and works in the field the whole day, वो कहता है कि अगर किसी का कोई दास है जो खेत में जाकर पूरा दिन काम करता है and in the evening he comes back from the work, और जब शाम को वो काम करके घर में लौट कर आता है he has worked the whole day, he is tired. और उसने पूरा दिन भर काम किया और वो थक चुका है, But when he comes back in the evening, लेकिन जब वो शाम को घर लौट आता है, Jesus said, will the master tell the servant, oh, sit down and have your food? Will he say that? तो यीशु ने कहा, क्या स्वामी उस दास से ये कहेगा, अरे तुम तो थक गए हो, तुम दिन भर काम कर चुके हो, तुम यहाँ पर बैठकर खाना खाओ? He says, no, you first serve me, let me have my food, then you eat your food. वो उससे यही कहेगा कि नहीं, पहले तुम मुझे खाना परोसो और मेरे खाने के बाद में तुम खाना खा लेना। And Jesus said, so likewise, और यीशु ने कहा, बिल्कुल इसी तरह से when you have finished all that has been commanded you, जो कुछ भी तुम्हें आज्ञा दी थी उसे पूरा करने के बाद, you have done all the work that God wanted you to do, परमेश्वर जो कुछ भी चाहता था कि तुम काम करो, सारे काम को करने पर say, वो ये कहता है कि तुम कहो I am an unprofitable servant, I have only done my duty. कि मैं तो एक निकम्मा दास हूँ, मेरा जो काम था मैंने केवल वही काम किया है।
That is the attitude God wants you to have. परमेश्वर चाहता है कि आपके अंदर में बिल्कुल ऐसी ही मनोदशा हो। That is the attitude I must have. मेरे अंदर ऐसी ही मनोदशा हो। At the end of my life, मेरे जीवन के अंत में after doing all that God has told me to do, परमेश्वर ने मुझे जो कुछ भी करने के लिए कहा था उसे करने के I बाद must say I'm a useless servant. मुझे बस यही कहना है कि मैं तो एक निकम्मा दास हूँ। I've only done what He has commanded me to do. परमेश्वर ने मुझे जो करने की आज्ञा दी थी मैंने बस वही किया है। All the praise and glory belongs to Him. सारी स्तुति और सारी महिमा तो केवल उसी की है। If that is your nature and attitude and motive, अगर ये आपका स्वभाव है, ये आपकी मनोदशा है, ये आपका विचार है, then your work will not get burnt up. It will be safe in heaven. तो फिर आपके जो काम है वो ऐसे भस्म नहीं होंगे, लेकिन वो सुरक्षित रूप में स्वर्ग में बने रहेंगे। God will give you His rewards. परमेश्वर आपको अपना प्रतिफल देगा। But if you do it with the wrong motive, लेकिन अगर आप इसे गलत उद्देश्य के साथ में करते हैं, you may be saved. I'm not saying you will be. You may be saved, तो शायद आप उद्धार पाए, but all your work will be destroyed. लेकिन आपके सारे काम भस्म हो जाएंगे It will be a wasted life. और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। Though others have been blessed, but you have lost your blessing. शायद दूसरे लोगों ने आशीष पाई है, लेकिन आप अपनी आशीष को खो बैठे हैं। So the second thing we saw today was examine your works and your motives. दूसरी बात जो हमने यहाँ पर देखी है कि आप अपने उद्देश्यों को और अपने कामों को जांच लीजिए, उसे परख लीजिए। Now I want to ask you again as I come to the end of this program. जैसे इस प्रोग्राम के अंत में मैं आ चुका हूँ, मैं आपसे फिर से यही सवाल पूछना चाहता हूँ। There is a kingdom that we are looking forward to. एक ऐसा राज्य है जिसके बारे में हम मनसा कर रहे हैं। We are living this life to go to be forever with God after we leave this life. हम इस जीवन को जी रहे हैं बस एक ही अपेक्षा के साथ में कि इस जीवन के बाद में हम परमेश्वर के साथ में अनंत काल के लिए रहेंगे। God has prepared a place for those who love Him and follow Him. परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर ने एक जगह तैयार की है। But He doesn't want anyone to go to hell and perish. He wants everyone to come to Him. और वो ये नहीं चाहता है कि कोई भी नरक में जाए और नाश हो जाए, लेकिन वो चाहता है कि सब उसके साथ में आए। But there is a way that you can come to Him. लेकिन उसके पास में आने के लिए एक मार्ग है। It's not a way that we have made. ये वो मार्ग नहीं जो हमने बनाया है, It is what God has made. लेकिन इसे परमेश्वर ने बनाया है। Humans have made hundreds and thousands of ways मनुष्यों ने शायद बहुत से हजारों सैकड़ों ऐसे मार्ग बनाए होंगे to somehow reach God, कि किसी तरह से परमेश्वर तक पहुंच पाए, but they are not able to make it लेकिन वो इससे पूरा नहीं कर पाए हैं, because we are sinners by nature. क्योंकि हम लोग स्वभाव से ही पापी मनुष्य हैं। God made a way for us that we can come to Him. परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग बनाया है जिसके द्वारा हम उस तक पहुंच सकते हैं। How did He make this way? और उसने ये मार्ग कैसे बनाया है? He sent His only Son, Jesus Christ, into this world. और उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा है। Our calendar 2019 is 2019 years after the birth of Jesus Christ. हमारा कैलेंडर जो बताता है कि अभी इस समय सन 2019 है, ये तो यीशु मसीह के जन्म के बाद में 2019 साल बीत चुके हैं, ये दिखाता The है। calendar itself shows you that it was a historical event. और कैलेंडर खुद ये बताता है कि निश्चय ही ये एक ऐतिहासिक घटना थी। He was born, He lived, and He died on the cross because of our sins. हमारे पापों के लिए ही वो इस पृथ्वी पर जन्मा, वो जीवित रहा और हमारे पापों के लिए ही वो मरा। All of us have sinned, हम सब ने पाप किया था and we have fallen away from God. और हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। Our sin has become a wall between you and God. हमारे पाप तो आपके और परमेश्वर के बीच में मानो एक दीवार जैसे हो गए थे। But Jesus came to break down that wall लेकिन यीशु इसीलिए आया कि उस दीवार को तोड़ दे and to bring you back into fellowship with God Almighty. और आपको फिर से सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ में संगति में वापस लेकर आए। The only way you can come to heaven, उसके पास में स्वर्ग में जाने के लिए एक ही मार्ग है, the only way you can have fellowship with God केवल एक ही तरीका है जिससे आप परमेश्वर के साथ में संगति कर सकते हैं, is to come through Jesus Christ. और वो यही है कि आप यीशु मसीह के द्वारा आए। Do you want to do that? क्या आप ये करना चाहते हैं? If you do not know how to receive this, I will guide you. अगर आप नहीं जानते कि इसे कैसे करें तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। Pray with me sincerely with all your heart. अपने पूरे दिल से ईमानदारी से मेरे साथ में इस समय प्रार्थना कीजिए And today you can have fellowship with God. और आज आप परमेश्वर के साथ में संगति रख सकते हैं And you can have intimacy with God. और आप परमेश्वर के साथ में नजदीकी संबंध रख सकते हैं। Pray with me. आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, Close your eyes अपनी आंखें बंद कीजिए and pray sincerely. और बड़ी ईमानदारी से मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, हे प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि तू
week again. प्रभु आपका आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।